तो महाभारती मंच पर सर हम लोग आज एकत्रित हुए हैं अपने प्रिय मित्र, भारत के अमूल्य रत्न, अपने बैच के शिरोमणि डी के जैन साहब के आकस्मिक निधन, जो 2 दिन पहले संज्ञान में लाया गया था, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही मैंने ये सूचना पढ़ी और मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, कि शब्द नहीं निकल रहे थे, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सत्य हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे डीके जैन साहब ने देश में विदेश में काफ़ी ख्याति प्राप्त की, मगर हमारे मित्रों ने, हमारे आईआईटी रुड़की अलुमनी एसोसिएशन ने जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। अब की से मैं, कुंद्रा और ये डीएम गुप्ता साहब ने कोशिश की थी कि हम लोग इस एसोसिएशन में घुसें और अपने जो मित्र आउटस्टैंडिंग हैं उनकी कन्वेंसिंग कर सकें, और अगली बार डीके जैन साहब को कुछ स्पेशल अवार्ड दिलवाते, मगर डीके जैन साहब उससे पहले ही चले गए। बड़ा अफसोस है। तो सर, आप लोग कैसा सोचते हैं आज के क्षण में, इस दुख की घड़ी में हम क्या नहीं दे पाए और उनसे क्या नहीं पूछ पाए? इसके बारे में कुछ चर्चा करें सर, प्लीज। हाँ, ऐसा है कि मैंने तो इलेक्ट्रिकल में करा था, सी, और डीके वॉज फ्रॉम मैकेनिकल साइड। तो उसमें डीके से जब मिले कि आई फाउंड हिम टू बी thorough gentleman, and he had so much capacity. I had lovely time with him because I used to play golf with him. And just 2 days before, he wanted me to come and play. Unfortunately, he passed away. अनिल रस्तोगी, प्लीज आप अपने विचार प्रकट करें। Yeah, I think he's a good person. I knew him from college days because he was cousin of my classmate Veer Kumar Jain. They were cousins, and he was very, very quiet in the college days. He used to do always busy in his work. But I knew him, and last time I met him when I came 5 years ago to Roorkee, and apparently my wife was sitting. I was mingling with all other friends, and my wife was sitting and having lunch, and he approached her. He said, "You look different," and that's what I talked to Neeta, and she said, "Oh, you look different. Who are you?" And then she explained. She told him that I'm Neeta, Anil's wife, and then I came back and we had talked about it. And I always ask him a question, hey, DK, you are so smart and everything, and you have been exposed to everybody in the world. I mean, every nation in the world. Why don't you run, enter politics? Probably you can contribute a lot for the country. But his answer was, he smiled and he says, Anil, this is a different world. I don't think I can do that. But he was a good man, but I didn't know that he has any problem or something. And unfortunately, I could meet him 2 years ago whenever you had the 50th anniversary, or about a year ago. Hmm. भाटिया साहब, नरेश भाटिया, प्लीज। Hello. Yeah. So, yeah, got this really sad news yesterday. It's really shocking. I might not have come so much into direct contact with Dinesh, but I knew him very well during my Roorkee days, and even after that also, I kept hearing about his like being ambassador and all. And yesterday I was listening to this talk Sudhir and Arun Kundra had with him. And in that it was mentioned that he was writing a book, and
maybe that's a sad thing that he could not complete that book on Jainism. But instead of being sad about anything what we leave, of course, we also, when we leave, will be leaving lot of things in between. So instead of being sad, I think we should be happy about his achievements and whatever he has done during his lifetime. So lot of Shraddhanjali from my side to him. See, I'll tell you about as far as my side is concerned. As far as the Roorkee days were concerned, I didn't have any interaction whatsoever, not even hi hello with him, because I was in metallurgy, he was in mechanical, and he kept more or less to himself. He was not such a sociable guy as a lot of other people were. So I didn't have any interaction. Yes, when I came to Delhi, when I shifted back to Delhi from Denmark, that time I met him in a function or two, and then I found him a very interesting man. His intellectual capabilities were very, very high, which were of course were expected from a person who had been an ambassador. And as far as my knowledge goes, I think he was ambassador in Mexico, the last posting he had. And after that, he was retired and he came to Delhi, and then he naturally was leading a very retired life. You see, my point here, or my take on all this, is that as far as a happening of a death is concerned, I take it as a factual inevitability. कि ये तो होके रहेगा, सबके साथ हुआ है, कोई भी, even भगवान also, they have also died. So this is an inevitability. The only difference is that if there is an untimely death, a young person has died, then of course is extremely sorrowful. But when you die old, then I think one should be happy for the life that person led, and if we had a lot of achievements, then we should celebrate it. Now the question is, now I'll take it to some generalities. You see, the point is that how do you define what is young and what is old? What is an age which you say, ki yes, if you die at that age, then how does that affect, or how does that affect the society or the nears and dears? Correct. Now the thing is that he by my calculation, I think he was 75 or something. And 75, 80, that is my kind of yardstick. I don't have any measurement or any standard or any kind of yardstick to go by, that this is exactly the cutting point, that if you're above that, then the death should be celebrated and not sorrowed upon. So that is my take on it. So if he was 75, well, he had a fantastic, fulfilling life. I mean, being an ambassador to a country representing India is a huge, humongous honor. And he achieved that, and he did some fantastic job. The way he got into IFS, by fighting the case, because his application was, or his entrance was rejected because of the medical grounds, and so on and so forth. So he had a fighting spirit. He was very, very highly intellectual. I had long discussions with him many times when we were together and things like that. We went together to some other places and things like that. But to complete the whole story, in the end, he had become a little bit of a recluse. His tolerance level to people's stupidity had become very, very low. And believe me, there were a lot of stupid people, we were surrounded with. And I sort of tolerated to a certain extent. And then I also said, okay, we have to give it up. But he continued. He just made it himself recluse. And, and that probably is not a very good thing in my view, because what happens is that once you make yourself recluse, then you lose the contact with the people. Also, And that is not a very good thing to do, at least not when you are at this age. We should mingle, we should talk to people,
and we should socialize. That is my take on all this. राइट Thank सर, you. थैंक यू वेरी मच। अब वन बाई वन हम लोग दोबारा अपने विचार रखेंगे जब तक हमारे नए साथी नहीं आते हैं। तो सर मेरा विचार यह है कि डीके जैन साहब ने जो कहा कि मेरी बॉडी का कम्बिनेशन ना हो और मेरी बॉडी पर रिसर्च की जाए, कितना अच्छा इनिशिएटिव है। उस जैसे आदमी का डीएनए कैसा था, ये स्टडी करने लायक चीज़ें हैं। मगर सर अफसोस इस बात का होता है कि अल्पायु हम उसको कहते हैं कि स्टेमिना है आदमी में, कैपेसिटी है काम करने की। इस दुनिया में अच्छे आदमियों की कमी है, और अच्छे आदमी जब जाते हैं तो देश खोखला होता है। मुझे लगता है इट इज नेशनल लॉस, इट इज rookie loss, it is the loss of his family also. So we have to condole it, and we should convey to our friends before going. अब हमें नहीं पता था, डीके जैन साहब ने 1 साल पहले मुझसे कहा था कि यार मुझे नहीं पता था यार 40 मिनट की तुम्हारी टॉक होनी है, मैं तो चलिए आपसे अगली बार बात करूंगा। मुझे कहाँ पता था कि भैया वो जाने वाला है, नहीं तो मैं उसकी किताब के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में पता लगा था। मुझे अपने मित्रों से कहना है कि महाभारती एक चैनल इसलिए बनाया गया है कि वो अपनी दिल की बात जाने से पहले और अपने दोस्तों से क्या अपेक्षा करते हैं कि जो ना कर पाए वो बता के जाए। मैं शुरुआत तो वहां से करें, चूंकि मैं इस समय धर्मशास्त्र के सारे उस पर चल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ चलने की। तो गीता के 2 अध्याय के 27वें श्लोक में बड़ा सीधा कहा है कि जात ही ध्रुव मृत्यु जन्म मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु से तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचित मर्हसि। जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित, और जो मरा हुआ है उसका भी जन्म लेना निश्चित है। पहले क्या था वो मालूम नहीं, अदृश्य था, गया यहां से अदृश्य हो गया। शरीर बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शरीर को दान किया, और ये हमारे यहाँ तो सिर्फ दधीच के बारे में ही कहा जाता है कि जीवित रहते हुए उन्होंने शरीर दान कर दिया था भगवान वृत्तासुर के वध के लिए। और तो कोई उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलता नहीं है, लेकिन वर्तमान युग के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी बात है कि किसी के काम तब भी आएगा, बच्चों के काम आएगा, जो आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अक्सर बच्चों को मिलते हैं वो डैमेज्ड बॉडी मिलती है। और इस केस में एक अच्छी बॉडी, एक अच्छे डीएनए की वहां मुलाकात हुई थी जब अब के गेट टुगेदर हुआ था हम लोगों का, तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में। लेकिन वहां भी सिर्फ हाय हेलो हो गया था, जैन साहब और फिर पांडे साहब कह के हम लोग बस नमस्कार कर। मैं ये समझता हूं कि लौकिक परंपरा होती है, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, हमारी गीता क्या कहती है, ये अपनी जगह है। लेकिन जो लौकिक परंपरा है, और वो मुझे दुख लगा है जब मैंने सुना कि हमारे डीएम ने वहां जाकर के वो कहा, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का एक व्यक्ति आईआईटी रुड़की एल्यूमिनाई एसोसिएशन का, वो कह रहा है हम लोगों के यहाँ होता है, मीटिंग करते हैं, एग्जीक्यूटिव चल रही होती है, और अगर 10 दिन पहले का किसी का मालूम हो जाता है तो हम उसकी मीटिंग के बाद कंडोलेंस जरूर करते हैं, क्योंकि वो हम कुछ कर नहीं सकते। हम उनके परिवार को सांत्वना भी अगर कहें तो बहुत बड़ी सीधी सी बात है कि सांत्वना क्या देंगे। एवरेज उम्र से कोई मतलब ऐसी भी बात नहीं है कि मैं ये समझता हूं कि जैन ने अपनी पूरी उम्र गुजारी, एवरेज उम्र जो है हिंदुस्तान में उससे वो एबव आ चुके थे। इसलिए हम सभी लोग कहीं ना कहीं पांव तो कब्र में रखे ही हुए हैं। सो हम लोगों को आज और कल में कब क्या किसकी क्या खबर आ जाएगी, सो बहुत ज्यादा परेशान होने की भी बात नहीं है। कि हमारी तरफ से आप उनके परिवार को सांत्वना के 2 शब्द
और ईमान व्यक्ति पैदा हुआ और गया है, तो जो काम करके गया है उसके हिसाब से उनको अच्छी गति मिलनी है, वो अच्छी गति प्रदान करें, ईश्वर से यही प्रार्थना है और ये उनकी अनुकंपा होगी। धन्यवाद। मैं कह देता हूँ, दिनेश was, was one of the brightest people I have ever met in my life. There are very few in that area. He was very sharp in understanding things, and very intelligent and good. As we said before, that he he had a unique ability to look at things with more critical eye, and than many of us would do that. So भगवान करे उनकी आत्मा को सद्गति मिले और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले. I have met their family, his family, a few times when they were in US, and also when I met them last time at the get together. And very very beautiful family. And ये बहुत दुख का समय है, and भगवान उनको शक्ति दे ये दुख सहने के लिए. ओम शांति शांति ओम. ऐसा है कि दिनेश भाई को, इनको हमारी को बड़े लेट स्टेज में इनसे दोस्ती हमारी हुई, क्योंकि ये मैकेनिकल वाले थे, हम इलेक्ट्रिकल वाले थे, और उसमें से जो है इंटरेक्शन जरा थोड़ा कम था. और मगर ऐसा है कि जब मैं यूएस गया 1987 में, उसके बाद से मैंने देखा कि ये तो जो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग, and he was thorough gentleman, very very devoted person. अरुण कुंद्रा जी के बारे में बताता हूँ. जब ये नेवी ज्वाइन करने वाले थे, हमारे घनिष्ठ मित्र थे, तो इन्होंने कहा, यार सुधीर, अगर मैं ना रहूं तो यार तुम मेरे बारे में जरूर दुनिया को बताना मैं करना क्या चाहता. तो मैं चाहता हूँ हमारे मित्र माँ भारती के मंच पे आके ये जरूर बता के जाएं कि साहब आप क्या करना चाहते थे और किन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके आदेश हैं उनके लिए जो जिंदा हैं. मैं तो सभी के 90+ होने की कामना करता हूं. अभी तो हम लोग जवान हैं. पांडे जी, ये मत कहिए ये सदगति और अपराह्न गति. जो भी गति मिली है गलत गति मिली. और मेरे को सिर्फ 2-4 ही लाइनें बोलनी है अपने डीके जैन साहब के सारे बारे में, कि हमारी 1-2 बार मुलाकात हुई है, रुड़की में भी 1-2 बार उनसे बातचीत हुई थी. और कुछ ऐसा था कि एक आपस में ऐसा महसूस होता था कि वी कुड अंडरस्टैंड ईच अदर व्हाट, बिकॉज हिज इंटेलेक्चुअल लेवल वाज वेरी हाई. और हम लोगों का क्या था कि भाई घसीट के कैसे आगे बढ़ना है, completing the integral course. So the gap in terms of the knowledge of the subjects could be much different. But all said and done, उन्होंने जितना हमने उनका डाउन टू अर्थ देखा, अभी लास्ट टाइम जब मिले तो मेरे और मेरी वाइफ के साथ में काफ़ी बातचीत करी उन्होंने. अच्छा, मैं कौन सी रोटी लूँ, मेरी वाइफ से पूछ रहे थे, तो क्या मैं ये वाली ले लूँ, क्या कहते हैं, क्या था कुछ, तो बोले नहीं ये तो ही लगा हुआ है. The way he was trying to interact with most of the people at the function last year in November. और उनकी वाइफ भी ऐसे भी तो इसी सिलसिले में वहाँ बात हुई. फिर मेरे को सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा बोलने को नहीं है मेरे को, और उतना कोई उनके साथ मेरा डिटेल्ड इंटरेक्शन भी नहीं था. बट जो हस्ती वो बन के उभरे हमारे 1973 बैच के लिए, वो सबके लिए एक फख्र की बात है. और मैं समझता हूँ कि ये किसी ने कहा ठीक ही कि भाई ऐसे लोगों की डेथ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, वो सही है अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ हमारे दिमाग में ये भी आता है कि भाई ऐसे लोग अमर होते हैं और
उनको अगर जितना ज्यादा से ज्यादा इस धरती को उनके रहने का या आने का फायदा मिल सके, तो वो शायद हम समझते हैं कि ये धरती उनके बेनिफिट्स से थोड़ा वंचित हो गई है अभी। बट जैसा सभी कह रहे हैं और सभी की इच्छा है कि भाई उनकी आत्मा को पूरी शांति मिले, let his soul rest in peace. Whatever he has done for the entire, I would say, the country is matter of pride for each one of us. और मैं शत शत श्रद्धांजलि अपने और अपनी लाइफ के बिहार पर उनको देता हूँ, और वही सबसे आग्रह करता हूँ कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, कितना डाउन टू अर्थ ये रहना, कितना हम फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने जो भी बोलना था वैसे दिनेश जैन के बारे में वो मैं बोल चुका हूं। तो मैं सिर्फ इसमें यही ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, अ, उनकी जो मिसेज है उनके ऊपर तो एक पहाड़ टूट पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी बेटी है, जैसा जहां तक कि मेरा इंफॉर्मेशन है, उनकी बेटी है जो कि यूएस में रहती है, वो भी मेरे ख्याल काफी ग्रीफ स्ट्रिकन होगी। तो नेचुरली उनके लिए तो ये जिसे कहते हैं कि सडनली एक बहुत बड़ा गैप आ गया लाइफ में, विच इज टोटली टोटली अंडरस्टैंडेबल। तो मैं इस माध्यम के थ्रू अपने कंडोलेंसेस उनके लिए कन्वे करना चाहूंगा, और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि भैया, मेरी तो प्रार्थना यही है भगवान से कि उनको इतनी स्ट्रेंथ दे कि इतना बड़ा जो लॉस जो हुआ है, हाँ, अगर दिनेश जैन जो है 80 के ऊपर या 90 के आसपास अगर वो जाते तो शायद इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हमें जाना तो सभी ने है। तो वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। जब रामचंद्र जी नहीं बचे, कृष्ण जी नहीं बचे, तो फिर हम तो सब मनुष्य ही हैं। शांति हो, मतलब है कि कुछ पंडित जी दो दो हमारे बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह का कार्रवाई करवा दें। और कुंदा जी 1 मिनट के लिए आप बोल सकें तो अच्छी बात है। काशी कांची अगर बोल सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पंडित रमाकांत जी कुछ विधि विधान से कुछ इस तरह की कार्रवाई करें जिससे कि उनको आत्मा को शांति पहुंचे। I think ओम। काशी मिश्रा जी बोलेंगे? आप ही काशी बोलिए, मिश्रा बोलिए जी। आप ही नहीं बोलिए। नहीं 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 सर, आपका कंडोलेंस नहीं हुआ है ना, प्लीज। हाँ, नहीं, बोल। भगवान ऐसी आत्मा कम होती है, कम आती है। और बस एक ही बात रह गया कि वो क्योंकि हेमरेज होके गए, तो ये नेचुरल डेथ नहीं मानी जा रही है, इसको नहीं माना जाता है। लेकिन हम लोग प्रार्थना यही कर सकते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी कोई समाधान मिले और जन्म ले लें। ईश्वर उनकी आत्मा को और that's उनको मार्ग प्रशस्त करे, उनका प्रकाश दिखाए। I think काशी जी, I'm sorry, but मैं ये नहीं मानता कि वो नेचुरल डेथ नहीं है। कोई आई बात नहीं, थिंक आप आपकी नेचुरल मान्यता डेथ है, इज नेचुरल अच्छा डेथ। है। हेमरेज किस आप तरह से, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया, पर इट इज चलो, अ नेचुरल डेथ। एंड ठीक, अच्छी भगवान बात उनकी है। आत्मा को शांति दे और बस ये मैं भी चाहता को हूँ, सदगति दे। सदगति पे। पांडे जी सो आप धन्यवाद। शांति पाठ कर लें, समय समय खत्म मैं हो जाएगा। बिल्कुल शांति कर दे, शांति पाठ कर दे। रमाकांत जी, मैं एक मंत्र पढ़ूं उससे पहले, जो कि महामृत्युंजय मंत्र है। वो भगवान ने कितना सुंदर वेदों में लिखा है। जी। अ, ओम, आप सब जानते हैं उसको। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। आगे, मृत्यु मृत्यु मुक्ति। और मुक्ति यमामृता। महामृतात्। हे भगवान, जिसकी सुगंधि, जिसकी सृष्टि चारों तरफ है, जिसको हम देखते हैं, हे ऐसे भगवान, मुझे तुम ऐसे अलग करना इस दुनिया से, जैसे कि क्यूकम्बर जो है पक जाता है तो वो बेल से अलग हो जाता है, या जैसे फूल पेड़ से सुगंधि देते हुए अलग हो जाता है, उसी तरह तुम मुझे देना। एंड आई थिंक इन दिस केस वो हुआ है। इन दिस केस वो हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को सदगति। बस इतना ही मैं तो कहूँगा। शांति पाठ कर लें, खत्म होने वाला हाँ, है समय शायद। ये 1 मिनट बचा है सर। हाँ जी।
ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्टाशु शांतिर्भवतु। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे, सभी परिवार के लोगों को शांति दे। शांति शांति शांति। Om Shanti Shanti Om. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। काशी मिश्रा जी, आप प्लीज समापन करें सर। मेरी भी प्रार्थना है कि ईश्वर उनको सद्गति दे, प्रकाश दिखाए। Om. हरि ओम हरि ओम सबको हरि नमस्ते। ओम।